प्रूफ स्ट्रेस, इन सब पे थियोरेटिकल क्वेश्चन बहुत बनते हैं पीएसयूज में, एई में, जेई में, पीएसयूज में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। ओके हाँ, सो राइट डाउन हियर व्हाट इज द प्रूफ स्ट्रेस। इट इज द स्ट्रेस required for some given permanent, some given percentage of permanent elongation. Elongation of gauge length. Of the gauge length. ये क्या बोला है, ये क्या बोला है, दूसरी लाइन और लिख दो। Hence there can be many proof stresses for a member or specimen. मेंबर और स्पेसिमेन, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको एक मेंबर दिया जाता है या एक स्पेसिमेन दिया जाता है लाइक दिस, तो आपको बताया गया है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट ड्यू टू सेंट वेनेंट प्रिंसिपल up to some distance stress will not be uniform in the bar, so that portion we don't consider in our stress analysis. We will consider only the part after certain distance. So specimen are designed like this, okay. In this part will be in UTM machine, इसको मशीन में लगा दिया जाता है। So this will be used for the gripping, and this part will be like LDES। तो LDES में क्या है, अपना इफेक्ट ऑफ सेंट वेनेंट प्रिंसिपल खत्म हो जाता है। सो नाउ वी विल study only about this portion, yes or no? So we will study only about this portion, okay. So only this portion will be called our gauge length. This portion will be called gauge length. We will study only about this original length or gauge length. So when you will apply load here like this, we have to check the percentage elongation in this gauge length. Let's say this length is L, this is the gauge length of the bar or specimen. Only we have to do study on this. Got the point or not? So here they are saying percentage elongation कराना है। So let us assume कि आपको पहले लेंथ जो दिया हुआ है that is 100 सेंटीमीटर, ओके, और आपको डेल्टा एल आपको 1 सेंटीमीटर का कराना है परमानेंट एलोंगेशन। परमानेंट एलोंगेशन मीन्स बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, मतलब इस बार को खींचे, देन यू विल
First you will pull the bar with load P, then release the load. Then delta L of 1 centimeter should be there permanently. Permanent elongation. So the final length will become how much? Final length will become 101 centimeter. Okay. So for this, let's say P1 load is required. Let's say P1 load is required. Okay. So corresponding to the P1, there will be the one stress, that will be what? Sigma 1 equal to P1 by A. This will be called your proof stress 1. Proof stress 1. So this will be 1. Then second case, delta L आपको let's say 2 सेंटीमीटर का कराना है. So final length will be your 102 सेंटीमीटर. Okay. So इसमें मैं लिख देता हूं here. This is for 1% elongation. Okay. This is for 2% permanent elongation. So this will be sigma 2. Okay. इस पर P2 लोड चाहिए होगा, then P2 लोड पर there will be some other stress that will be called proof stress 2. So for different percentage, how many proof stress can be there? Many proof stress can be there for a particular member. Yes or no? So many proof stress value can be there. अलग अलग परसेंटेज elongation के लिए different proof stress value will be there. ये सबको क्लियर हुआ? तो जैन लिखो फटाफट. राइट डाउन जय हिंद. हो गया. वेरी गुड. चलिए, तो यहीं तक आज मैं रख रहा हूं. फ्रॉम दिस वी विल लर्न इन नेक्स्ट क्लास. आज काफ़ी कुछ कर लिया हमने, कल और बहुत कुछ पढ़ेंगे एंड दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग क्लास. ओके. सो क्लास बाई क्लास वी विल बी मूविंग लाइक दिस, और धीरे धीरे आपको और भी इंटरेस्ट आएगा. अभी हम लोग थ्योरी कर रहे हैं, बट आफ्टर कंप्लीटिंग 3, 4, 5 classes, then we will start the problems also. Okay, don't worry. क्लियर है? तो आज के लिए बहुत है. ठीक है. प्रूफ स्ट्रेस का कोई सिग्निफिकेंस ही तो बताया है आपको. ये बेटा, ये सिग्निफिकेंस ही तो बताया है आपको. दिस इज द सिग्निफिकेंस. जैसे ये 100 सेंटीमीटर का एक बार है, एक 100 सेंटीमीटर का बार है. कोई कहता है मुझे इसमें 1 सेंटीमीटर का परमानेंट एलोंगेशन करके दे दो. सो टू मेक दी 1 सेंटीमीटर परमानेंट एलोंगेशन, मेरे को आई हैव टू अप्लाई सम P1 लोड. सो फॉर करस्पॉन्डिंग टू दी P1 लोड देयर विल बी सिग्मा 1 स्ट्रेस, दैट विल बी कॉल्ड प्रूफ स्ट्रेस 1. तो ये डायरेक्ट आपको जब डिजाइन करते हैं ना, डिजाइनिंग में आपको जरूरत पड़ती है प्रूफ स्ट्रेस की, कि मेरे को कहाँ पर कितना परसेंटेज परमानेंट एलोंगेशन कराना है. मतलब जब आप कोई पार्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और आपको परमानेंट एलोंगेशन कराना है. ठीक. जैसे इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इसका यूज है. जैसे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या किया जाता है, आपने कई बार देखा होगा, ट्रक में पीछे ऐसे माइल्ड स्टील का शीट्स रखा रहता है, ऐसे बड़े बड़े ट्रक में इस तरीके से ना, ट्रेलर पे पीछे ऑन द ट्रक यू मे हैव सीन लाइक दिस माइल्ड स्टील शीट्स आर देयर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल कैसे बनाया जाता है? मेटल बनाया जाता है मेटलर्जिकल प्रोसेस से, है ना. मेटल बनाया जाता है मेटलर्जिकल प्रोसेस से. देयर इज योर पूरा प्रोसेस होता है मेटलर्जिकल प्रोसेस. उसके बाद उसमें से जो मेटल निकलता है, लिक्विड मेटल को ब्लॉक के फॉर्म में भी आप स्टोर कर सकते हो, है ना. जैसे गोल्ड है, गोल्ड का बिस्किट लेते ना, गोल्ड बिस्किट्स, गोल्ड आर प्लेस्ड इन फॉर्म ऑफ बिस्किट्स.
after that whenever it is required you can turn that gold into any form, है ना, कुछ भी बना रहे हो उससे, डिफरेंट डिफरेंट ज्वेलरी यू आर क्रिएटिंग फ्रॉम दैट गोल्ड बिस्किट. So initially it is converted into gold biscuit form because it is easy to handle. Similarly, mild steel where the sheets are required, like कार का जो बॉडी बनता है, कार का जो बॉडी बनता है उसमें ये शीट्स यूज होगी. इन शीट्स को भी दोबारा रोलिंग करके इनका थिकनेस यू विल बी यूजिंग. जैसे रेफ्रिजरेटर बना आपका फ्रिज, वहाँ शीट मेकिंग इंडस्ट्री, शीट मेकिंग रोलिंग प्रोसेस से बन रहा होगा, ठीक है. लेकिन जहां आपको लेट से नट एंड बोल्ट चाहिए इन दी इंडस्ट्री, जिसमें आपको नट एंड बोल्ट बनाना है, जैसे आपको ये एक नट बनाना है, सॉरी बोल्ट बनाना है, लाइक दिस यू हैव टू मैन्युफैक्चर दिस बोल्ट. सो व्हाट यू विल डू, आपके पास पहले एक रॉ मटेरियल होगा इस तरीके का बार, यू विल बी हैविंग ए बार लाइक दिस. उसमें आप क्या करेंगे, इस साइड इसको डाई में you will put this side into a die and press from here, so this head will convert into like this. Okay, after that length you required, dia you will require, let's say d1, here dia is d2. So what you will do, after that you will hold it and pull it. So how much dia reduction you want and how much length more you want. तो यहाँ पर मान लो आपको ये गेज लेंथ हो गई, स्टार्टिंग में ये पीस, दिस पीस विल बी स्मॉल एंड यू विल पुल इट एंड मेक ए स्क्रू ऑफ दिस लेंथ. तो आपको पता है आपको कितना परसेंटेज इलोंगेट करना है, तो वो वहाँ पर इंडस्ट्री में आपको पूरा चार्ट रहता है कि इस मटेरियल का प्रूफ स्ट्रेस इतना है, 1% पर इतना है, 2%, तो आपको पता है मेरे को कितना लोड अप्लाई करना है. गेटिंग पॉइंट और नॉट? गुड. तो सारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. स्लोली व्हेन वी विल लर्न ऑल दी सब्जेक्ट ना, मैन्युफैक्चरिंग ये सब, तो ऑल सब्जेक्ट विल बी कनेक्टेड इन योर ब्रेन. मैं पढ़ाऊंगा ही इस तरीके से कि आपको सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है. सो एवरी सब्जेक्ट आई विल ट्राई टू कनेक्ट इन योर ब्रेन, डोंट वरी. गेज लेंथ, गेज लेंथ मीन्स द लेंथ अंडर कंसिडरेशन. गेज लेंथ, इनिशियल लेंथ, गेज लेंथ इज नथिंग बट इनिशियल लेंथ, द लेंथ जिस पर हमको स्टडी करना है. बस ये फालतू का पोर्शन है, दिस इज यूजलेस फॉर अस. दिस विल गो इन द ग्रिपिंग इन द मशीन, दिस विल गो इन द ग्रिपिंग, ये मशीन में फंसाने के काम आएगा, ठीक है. स्ट्रेस कितना हो रहा है, स्ट्रेन कितना हो रहा है, दैट वी विल स्टडी ओनली इन दिस पार्ट. सो दिस पार्ट विल बी कॉल्ड योर गेज लेंथ. क्लियर हुआ? We will not consider full length here to here, only gauge length we will study. So the length under consideration for study will be called gauge length.